اسرائیلی بمباری سے 425 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 1 گھنٹے میں 50 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 5800 ہو گئی۔ شہداء میں 2300 سے زائد بچے اور 1300 کے قریب خواتین شامل ہیں۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد 18000 ہو گئی ہے۔ غزہ کے 35 میں سے 12 ہسپتال بند ہو چکے ہیں، جبکہ 72 میں سے 46 طبی مراکز غیر فعال ہو گئے۔ مسلسل حملوں میں ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے 65 ارکان بھی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں خوراک کی شدید کمی ہے۔ گزشتہ روز رفح کراسنگ سے امدادی سامان کے 20 ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ امید ہے کہ امدادی سامان کے ٹرک آج داخل ہو سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایندھن نہ ملا تو آج غزہ کے ہسپتال بند ہو جائیں گے اور پینے کے پانی کی فراہمی بھی رک جائے گی۔ غزہ کے ہسپتالوں میں انکیوبیٹر میں موجود 120 نومولود بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایندھن کی کمی سے بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ اسرائیل نے حماس کے پاس 5 لاکھ لیٹر سے زائد تیل کا ذخیرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس سے ایندھن کی فراہمی کا کہا جائے۔ اس حوالے سے اسرائیل نے حماس کے پاس ایندھن کی موجودگی کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ ایندھن کی کمی سے بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ اسرائیل نے حماس کے پاس 5 لاکھ لیٹر سے زائد تیل کا ذخیرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس سے ایندھن کی فراہمی کا کہا جائے۔ اس حوالے سے اسرائیل نے حماس کے پاس ایندھن کی موجودگی کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ ایندھن کی کمی سے بجلی بند ہوئی تو بچوں کا زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ اسرائیل نے حماس کے پاس 5 لاکھ لیٹر سے زائد تیل کا ذخیرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس سے ایندھن کی فراہمی کا کہا جائے۔ اس حوالے سے اسرائیل نے حماس کے پاس ایندھن کی موجودگی کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان نے فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی کارروائی وسیع اور زیادہ خطرناک تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ فلسطینی اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور ان کی جدوجہد کو دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے۔ فلسطینیوں کو مکمل آزادی کا حق ہے۔ حماس نے 23 سال میں اسرائیل پر کتنے راکٹ برسائے، کتنے اسرائیلی مارے گئے؟ جواب ہے 36,000 حملوں میں اسرائیل کے صرف 69 لوگ مارے گئے۔ اسرائیل نے اب تک کتنے فلسطینی شہید کیے، اس کا جواب کون دے گا؟ لبنان کی سیاسی تجزیہ نگار سارہ یافی نے اسرائیل کے مکروہ چہرے سے نقاب نوچ لیا۔ غزہ کے الاہلی اسپتال پر فلسطینی راکٹ حملے کا اسرائیلی دعوے کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ غزہ جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے انتباہ کیا کہ لڑائی سے خطے میں وسیع تر انتشار کا خطرہ ہے۔ جنگ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ فلسطینی عوام 56 سال سے قبضے کا شکار ہے۔ اسرائیل کا نام لیے بغیر انتونیو گوتریس نے کہا کہ اپنی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو نکل جانے کا حکم دیا جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ضلع خیبر کے علاقے تھانہ تیرہ چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار سیکیورٹی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع خیبر کے علاقے تھانہ تیرہ چیک پوسٹ پر یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا ہے۔ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار سیکیورٹی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی اور اس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ پی ایس او کو 7 کروڑ کی ادائیگی بھی کسی کام نہیں آ سکی۔ پی آئی اے کی مزید 49 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے لاہور کے لیے پی کے 302، پی کے 303، پی کے 304 اور پی کے 305 منسوخ کر دی گئی ہیں۔ فیصل آباد کے لیے پی کے 340 اور 341، اسلام آباد کے لیے پی کے 368 اور 369 کو منسوخ کیا گیا ہے۔
गवादर के लिए PK 503 और 504, मुल्तान के लिए PK 330 और 331 को मंसूख कर दिया गया है। PSO को 7 करोड़ की अदायगी भी किसी काम नहीं आ सकी है। फैसलाबाद के लिए PK 340 और 341, इस्लामाबाद के लिए PK 368 और 369 को मंसूख किया गया है। गवादर के लिए PK 503 और 504, मुल्तान के लिए PK 330 और 331 को मंसूख कर दिया गया है। PSO को 7 करोड़ की अदायगी भी किसी काम नहीं आ सकी है। सेनेटर शहरी रहमान का PIA फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने पर तशवीश का इजहार। कहा कि एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुतासिर हुईं। मनसूबाबंदी के तहत PTI हुकूमत ने PIA को तबाह किया। PIA और PSO के दरमियान इंतजामी मामलात पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों से 24% कटौती के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। कटौती सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए की जाएंगी। असम्बली मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजी जाएगी। कटौती का फैसला शोबा मालियात के आला सतह इजलास में हुआ है। डिफॉल्ट से बचने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया है। सरकारी ज़राए की जानिब से बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। कटौती सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए की जाएंगी। असम्बली मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजी जाएगी। कटौती का फैसला शोबा मालियात के आला सतह इजलास में हुआ है। डिफॉल्ट से बचने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया है। सरकारी ज़राए की जानिब से बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। कटौती सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए की जाएंगी। असम्बली मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजी जाएगी। कटौती का फैसला शोबा मालियात के आला सतह इजलास में हुआ है। डिफॉल्ट से बचने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया है। सरकारी ज़राए की जानिब से बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़रिए सदारत ताहम इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और मुतल्लिका हुकाम के इजलास में शिरकत। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला के RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। दुर्र नायाब से इजलास का अहवाल जानते हैं। जी बताइएगा दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे जो है वो इजलास हुआ है और सेफ सिटी में उन्होंने जाकर इस अहम इजलास की सदारत की है, जिसमें लाहौर के अलावा जो है वो गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद के सेफ सिटी प्लान को फौरी तौर पर उन्होंने अमल दरामद करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में लाहौर 1-5 सिस्टम जो है उस पर भी बात की गई है। उसके साथ इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से सोल्यूशन की बात की गई है। वज़ीर आला को बताया गया है कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर हर सूरत 2000 कैमरे जो है वो ऑपरेशनल होंगे और नवंबर के पहले हफ्ते तक ये फंक्शनल होने की पूरी जो है वो मैकेनिज्म को रेडी किया जाएगा, जिसपे वो कभी भी किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला है, उसको अब सिस्टम के साथ मुंसलिक करने के लिए मुकर्रर मुद्दत से मुकम्मल करने के इक़दाम करें। इमारतों की तामीर के साथ जरूरी आलात की खरीदारी का अमल बरवक्त मुकम्मल किया जाए। महकमा तामीर व मवासलात इमारतों की तामीर को मुकर्रर मुद्दत में तकमील करे। उन्होंने कहा वो इन प्रोजेक्ट की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे और वक्त पे तकमील करने के तमाम इक़दाम करें। पूरे कार तमाम मसाइल को लाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने DHQ हस्पताल झंग का दौरा किया। हस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। हस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से अद्वियात की दस्तयाबी बारे पूछा। वज़ीर आला पंजाब ने झंग में गुलाम नबी हस्पताल का भी दौरा किया। हस्पताल के ज़ेरे तामीर ब्लॉक का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 310 बिस्तरों के अस्पताल को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ज़ेरे तामीर ब्लॉक मुकम्मल होने पर 510 बिस्तर हो जाएंगे। हस्पताल में मुकम्मल अद्वियात फराहम की जा रही हैं। झंग में बहुत से तरक्याती काम जारी हैं। आपका झंग हॉस्पिटल अभी 310 बेड का है, लेकिन ये दोनों बिल्डिंग जब बन जाएंगी तो 525 बेड का ये हॉस्पिटल हो जाएगा। अभी डेफिनेटली मरीजों के ऊपर मरीज चढ़ा हुआ है, जगह नहीं है, बेड्स नहीं है। इमरजेंसी में दवाइयाँ सारी मिल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी दवाइयों की भी शॉर्टेज है।
उसको भी पैसे दे के हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है जो मुझे अभी नज़र आया है वो अब चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं फौरी तौर पे लाहौर जाके इसके जो फंड्स का इशू आ रहा है वो फौरी तौर पे रिलीज़ करा देंगे। लेकिन बेड्स का सबसे बड़ा इशू है और एक दफ़ा ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाते हैं दोनों सेक्शन, तो ये गुलाम नबी सेक्शन जो है ये भी और जो दूसरा वाला है, तो उसके बाद हमारे आई थिंक मसले काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। आपके झांग में बहुत सारे काम हो रहे हैं, डीसी साहब लगे हुए हैं और होपफुली इंशाल्लाह ताला वो काम भी अगले 2-2.5 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। आपके झांग की शक्ल जरूर एक दफ़ा तब्दील होगी इंशाल्लाह ताला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने शरीक मुलजिम अमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म कर दिया है। फरजाना सदीक से तफसीलात जानते हैं। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज इस केस की समाअत हुई। शहबाज गिल की बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई है, जबकि अदालत ने शरीक मुलजिम अमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म कर दिया। जज तहर अब्बास सिपरा ने इस केस की समाअत की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुलजिम अमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म करने की डायरेक्शन दी। शरीक मुलजिम अमाद यूसुफ की हद तक केस में ट्रायल खत्म किया जाता है, लेकिन केस में इश्तिहारी शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दी है और SHO को हदायत भी जारी कर दी गई है कि जहां पर भी शहबाज गिल नजर आए उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।